Hello, everyone. I'm Zahid from Talks at Innovation Valley, and today we have a very amazing guest with us, Ahmad Aslam, a delivery manager from Code Ninja. Before we go ahead, I would love to introduce my guest. So uh, he has, you know, he has seen how technology ecosystem takes shape in two different market and now works where global delivery economics and policy increasingly meet. Ahmad Aslam, uh, senior delivery manager at Code Ninja, working with global clients on AI and enterprise technology delivery from Pakistan, having studied at the University of Buffalo and worked in the United States. Ahmad has seen how mature market connect talent, capital, customers, and policy. He also hails from a political background as the son of Brigadier retired Muhammad Aslam Ghumman, MNE for NA 74. That proximity has given him a close understanding of how policy takes shape and how it must evolve with changing economic needs. Ahmad continues to study Pakistan's economic landscape, particularly what those shifts mean for the direction of its technology sector. And today we will be covering the topic, very close to my heart, uh, how Pakistan can build on its service base and move toward higher value technology and globally relevant innovation. Ahmad is a frequent guest on podcast and at industry forums discussing these very questions, and I'm glad that we have the opportunity to explore them with him tonight. Ahmad, welcome to the show. Thank you so much, guys, for having me. You're welcome. So, Ahmad, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो है वो आपने अमेरिका में पढ़ा, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आप पढ़े, उसके बाद आपने किस वजह से ये फैसला किया कि आपको पाकिस्तान में वापस जाना चाहिए और पाकिस्तान के इकोसिस्टम में अपना रोल प्ले करना चाहिए, और खास तौर पे आपने लाहौर को चूज किया, यहाँ पर आपने कोड निंजा को ज्वाइन किया और एक लीडरशिप रोल आपने जो चूज किया। तो ये पूरा आपका जो एक वजह थी कि वहां पढ़ने के बाद बजाय बाहरी काम करते आप पाकिस्तान वापस आए, लाहौर में आपने कोड निंजा को ज्वाइन किया एक लीडरशिप पोजीशन पे, तो ये सारे की क्या वजह है? अपनी स्टोरी प्लीज बताइए इससे पहले कि हम टॉपिक पे जाएं। Thank you for the good question. So for me, Zahid, it was always I had in mind that I had to come back. I had a strong kind of a social background in Pakistan where my father was not in politics, but he's not even he's a different MNA. Previously, my chacha Azim woman, he has been elected twice as an MPA. He was a public committee chairman. My dada was a BT member during Ayub Khan's time, and then he was very active in the town politics. He got elected counselor multiple times. So I had a very strong integrated background. So going to study abroad and work was always a temporary ambition for me. I always had in mind that I had to come back to my roots. So it was always in my mind to come back. So that's does not kind of was a difficult decision for me, but I think it really helped me kind of gave me opportunity to see a world which was totally different what I was experiencing, like being a background from politics and seeing military, seeing different, being part of three different governments. Uh, when what I observed standing in the corner of the room with my family was that it kind of frustrated me that we had such a potential, but we never had a policy decisions at the right time and for consistent times to deliver the impact which our youth and our talent can make if we connect them with the technology. So that's I think that was always kind of a frustration for me, and this has major played a major part of me to start coming to podcast, start writing on newspapers. So yeah, that's about it. तो अम्माद ये बताइए कि चूंकि आपने पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को करीब से देखा, आपकी फैमिली में बहुत से लोग पॉलिटिकल पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान की सियासत के अपने खानदान की वजह से डायनेमिक्स को समझते हैं, आपका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, बाहर से आप पढ़े हैं, वेस्ट को आपने देखा, करीब से काम किया, वहां पर पढ़े, आपको क्या लगता है कि हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा और क्या मसाइल है? जहां तक आई थिंक से वेरी बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है। पहली तो बात यह है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये अक्स किया कि
जो पॉलिटिकल हमारी पॉलिटिक्स से हम नैरेटिव बिल्डिंग जरूर करते हैं, बट वी हैव सॉर्ट ऑफ फेल्ड टू गिव डायरेक्शंस जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमिक अपलिफ्ट कर सकें, नॉट जस्ट आईटी इंडस्ट्री और एआई इंडस्ट्री, ऑल टुगेदर आई थिंक वी हैव फेल्ड इन मल्टीपल ways to adopt. Like for example, in India, when we talk about BPO services, call centers they built, and how they got into service industry. We should remember that they started this in 1986. So they did like almost 4 decades ago, right? When probably we were doing as a Pakistani nation, we were focusing on conflict in Afghanistan, and we were doing other things altogether. So they were focusing on lowering down their duties on importing computers, investing heavily on tech institutions like IIT, and they create a sort of a miracle and took their exports around 200 billion dollars. तो ये देखने का I think that ये हमारा एक perspective मैंने different देखा. And when I walked into the classrooms in the faculty centers of whether it's Iowa State University where I did my engineering, or where it was University of Buffalo, New York, where I did my master's, I saw that impact. Like we had Indian faculties, and we basically had no Pakistani faculty in those institutions where I've studied. But I've seen multiple of people from not just India, from Middle East, from Far East Asian countries. So that there was a huge difference which I felt. So, but when you talk about when I see that you talk about coming back to the difference between the markets like US and Pakistan. Well, the biggest difference is they whether it's universities, whether it's R&D, whether it's their venture capital firms, whether it's their startups or enterprise level companies, they all are part of one ecosystem. So they collaborate, and everything is connected. They very understand capital investors very much understands how to look at the R&D which can lead to commercial success. So they invest properly. They look at the results which startups produce, what kind of products they're working on. So a lot of startups they get up funding even they are not profitable yet. So a lot of there's a huge kind of ecosystem which is there, and I think these pieces almost it's almost all of them is missing here. We do have good examples, like for example, Code Ninja. We are focusing on building AI and data transformation projects. We're working on cloud and security related projects for customer across the globe. There are other good examples as well of the country. But we should talk about as a whole, if you say as a niche, as an industry, I think we lack a lot of elements in the ecosystem which require us to be successful, and we take our RD and AI exports to next level. All right. So, अहमद, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 322 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया बीपीओ स्पेस में. आपको पता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के मद में. तो आप पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम जो है, जो टेक सेक्टर है, आप इसकी हिस्ट्री को समझते हैं. दुनिया को भी ये मालूम है और हमें भी मालूम है कि हम ज्यादातर जाने जाते हैं कि हम अपने लोगों के आवर्स बेचते हैं, हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं. ठीक है, आप नहीं समझते कि अब हमें अगले लेवल पे बढ़ के तो इसको प्रोडक्ट्स पे लेके जाना चाहिए, एआई में जाना चाहिए, प्रोडक्ट्स अपनी बननी चाहिए. हमारा जैसे इंडिया ने किया, आपने इंडिया का रेफरेंस दिया कि उन्होंने 1980s में शुरू कर दिया था ये सारा मामला. तो अब हमें इसको पूरा कैच करने के लिए अब आप देखें ना, एक गैप्स है. हम एक सर्टेन लेवल पे खड़े हुए हैं. एक है हमारा पोटेंशियल पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल, और एक है हम कहाँ खड़े हुए हैं. तो आपको नहीं लगता कि उस पोटेंशियल को पाने के लिए, उस पोटेंशियल को कैच करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और उसमें सिर्फ सर्विसेज से या आवर्स बेचने से काम नहीं चलेगा. आपको क्या लगता है कि हम कैसे आईटी सेक्टर को इस सर्विसेज से उठा के प्रोडक्ट्स, फिर एआई, डेटा सेंटर्स, और बिल्कुल एक यहाँ पर ग्लोबल सेंटर्स बने, यहाँ कंपनियां आए, तो ये सब कुछ कैसे होगा? हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इकोसिस्टम को क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन और एकेडेमिया को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल. देखिए, पहले तो आपने जो फिगर्स कोट किया, आई थिंक इफ वी गो ओवरऑल तो हम उसको डिस्कस कर लेते कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स जो आईटी रिलेटेड सर्विसेज की और बीपीओ और बाकी सब की वो तकरीबन 4.6 बिलियन यूएस डॉलर की थी, which seems to be a very impactful number for economy like us for now. But हमें समझने की सबसे पहले जरूरत ये है कि we should divide that
कि हमारा वो 4.6 बिलियन का स्प्रेड किधर है. So if we divide, so I by and large we can divide into almost 4 categories. एक कैटेगरीज हमारी है जो सर्विस बेस्ड हम काम करते हैं, जो हम सर्विसेज देते हैं, जिसमें ये अब हमारे बीपीओ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं. उसके बाद जो हम मैनेज सर्विस काम करते हैं, जो हम प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उनके लिए, वी गिव इट टू देम, वी गेट पेड, एंड देन दे रन द शो एंड ईच एंटरप्राइज यूज दैट प्रोडक्ट. एंड देन थर्ड स्पेस इज आवर एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काम जो चल रहा है, व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू. एंड द फोर्थ स्पेस इज बेसिकली the product and the platforms. How much products are making revenue for us? How much platforms our clients are using? So ये 4 कैटेगरीज. अगर हम पहले 2 की बात करें, दैट्स ओल्ड स्कूल थॉट जो हम करते आए हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम दुनिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, तो फ्यूचर रिलायस ऑन एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बिल्डिंग और आईपी. आई थिंक ये 2 एरियाज है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, और इनको ड्राइव करने के लिए हमारे जो इकोसिस्टम में कुछ चीजें हैं जो बड़ी क्लियर हैं, जो हमें मिसिंग करनी पड़ेंगी, मिसिंग है, एड्रेस करना पड़ेगा. फर्स्टली तो हमें आई थिंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना पड़ेगा. वी स्टिल हैव आवर एंटरप्रेन्योर भी इतना डिस्कवर्सिव नहीं है, और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, they don't have money to use infrastructure to to develop products and IPs, invest on that, so they can get to the level where they can have recurring revenues of at large scale. So हमें एक तो funding is fundamental. Second of all, I think we have to make our the process है, whether it's registering our new startups companies, whether it's taxation system, whether it's registering on SCCP. I think we have to make it fast track for our youth and for our emerging entrepreneurs. So it should not take months. We should have a single documented, policy for all the for tech and AI companies to go through that, and they can able to open up companies and go through the documentation in a fast pace as much as possible. So I think that's very critical. And third thing is, I think very important for our talent, our startups to have access to affordable AI infrastructure, especially computing. हमने अभी देखा कि पाकिस्तान ICT developed Karakoram one named data centers. I think Sky 47 just launched it. It's Pakistan's first data center which has computing power and all that. I would like to see that how much of that computing power we are giving to our universities, our startups at a lowest possible cost, जहाँ पे वो जो existing platform use करते हैं, whether it's in AWS या बाकी प्लेटफॉर्मों से कितनी वो cheap है, and how our research and development work is in our universities जो है उसको connect किया जाए. Or we have to, when we talk about universities, our universities also have to mature. We should not focus on granting research papers which are not driven to produce commercial viable products. We every year we get a lot of PhDs from our tech institutions. We have to sit with our academia. Government probably has to take that lead, that they should invest on only those theses which are producing commercial viable products that we can build, we can sell, and we can register as our own IPs. I think that's very important. All right. तो अम्माद, आप जानते हैं कि जब से एआई दुनिया भर में रोल आउट हुई है, अब बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एआई करने की सलाहियत और इस्तेदाद रखती है, कैपेबिलिटी रखती है. तो आपको पता है कि इंसान की एक लिमिट है काम करने की, उसके नंबर ऑफ आवर्स की, उसकी कैपेसिटी की, उसकी स्ट्रेंथ की, और आप कितने को ज्यादा बंदे हायर कर सकते हैं. आप क्या समझते हैं कि जो हमारा एज अ कंट्री टारगेट है कि हमने कहाँ जाना है, और प्लस जो कस्टमर बाय करना चाहता है, जो आपने डिलीवरी करनी है, इस पूरी चीज को अचीव करने में एआई क्या रोल प्ले करेगी, कैसे एआई इसको लेवरेज करेगी, किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है, आप इसकी पूरे मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा यहाँ पर. उमर जो है कोड निंजा के को फाउंडर, वन ऑफ द को फाउंडर्स, मैं बहुत फॉलो करता हूं उनको, और मैंने बहुत बार देखा है कि वो सिस्टम्स और इकोसिस्टम्स पे बहुत बात करते हैं कि कैसे एआई को लेवरेज करते हुए आप सिस्टम्स और इकोसिस्टम्स बना सकते हैं ताकि ह्यूमन
और मशीन दोनों ब्लेंड करें, कोलैबोरेट करें और चीजें जो है वो अपलिफ्ट हों। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ऐड करते हुए आपको क्या लगता है कि हमारे जो कंपनीज के इंफरादी टारगेट्स हैं और जो हमारे नेशनल टारगेट्स हैं एज आईटी सेक्टर, एज आईटी इकोसिस्टम, वो सब कुछ अचीव करने में एआई को हम स्मार्टली कहाँ-कहाँ यूज करें और कैसे यूज करें? बात तो बहुत ज्यादा हो रही है एआई के ऊपर, बट लोगों को ये नहीं पता कि एआई को कैसे इस्तेमाल करें। वो शायद यही समझते हैं कि एआई से शायद तस्वीरें बनती हैं, जनरेटिव एआई इस्तेमाल करते हुए। तो इस पे बिल्कुल। कुछ रोशनी डालिए। ग्रेट। सो पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फ़ॉलो अप पॉइंट जब मैंने कहा था कि हमें फ़ोकस करना है 2 कैटेगरीज़ पे, वेदर इट्स एआई, डेटा ट्रांसफॉर्मर्स या अपनी और आईपी। अब समझने की ये ज़रूरत है कि आपने बड़ा जो कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया कि दुनिया, द क्लाइंट शिफ्ट हो चुका है। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जिनके मार्केट शेयर या पोटेंशियल ऑफ हमारे जैसे मुल्क का बिज़नेस करने की ज़्यादा है, वेदर इट्स यूएस, वेदर इट्स यूरोप, वेदर इट्स लीडिंग कंट्रीज़ इन मिडल ईस्ट लाइक यूएई एंड सऊदी अरेबिया। द कन्वर्सेशंस हैव शिफ्ट फ्रॉम कि हमने कितने लोग उनको देने हैं, क्या सर्विस देनी है, क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वो कितने लोग बनाएंगे। द कन्वर्सेशंस हैव एक्चुअली शिफ्टेड एंड आई एम अ विटनेस ऑफ दैट यू एंड आई सेकंड व्हाट यू सेड। नाउ दे टॉक टू अस अबाउट आउटकम्स एंड एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि आप एआई को लीवरेज करके किस तरह फास्ट पेस काम कर सकते हैं, वेदर द वर्क विच जो प्रोडक्ट हमने आपको से पहले बनाई थी इसको आपको एक 6 महीने साल लगा था, हाउ कैन यू डू दैट इन 2-3 मंथ्स। व्हाट क्वेश्चन शिफ्ट हो गए हैं कि आप एआई को यूज तो कर रहे हैं लेकिन आप गवर्नेंस के लिए क्या कर रहे हैं, आप जो है सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये सब कन्वर्सेशन टर्न हो चुकी हुई हैं। तो to answer first part of the questions, as a enterprise companies, our focus should be कि हम कस्टमर को जो प्रोडक्ट पिच करें तो वी शुड फोकस ऑन व्हाट वी आर अप्रूविंग, व्हाट प्रोसेस, व्हाट आउटकम हम उनको अप्रूव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टर्न ओवर दिस प्रोजेक्ट व्हिच वी आर डिलीवरिंग फॉर देम। एंड देन वी आल्सो हैव टू इंश्योर देम कि हम गवर्नेंस एआई को गवर्नेंस के लिए क्या कर रहे हैं, hallucination कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हैं, हम बायसेस को कंट्रोल करने के लिए हम किस तरह कर रहे हैं, and even how do we secure our hosting of those AI models or solutions we are building। ये सब जो conversations के answers हैं जो हमने देने हैं। This is basically addresses your first question। Secondly, when to हमारे लोगों के लिए कि AI, मोस्टली लोग AI को चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं ज्यादा, या बहुत से कम लोग अब क्लॉड को इंटरनेट के ऊपर देखना शुरू कर दिया है। दे मोस्टली यूज इन क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, वेबसाइट का कंटेंट बना रहे हैं। बट व्हाट अंडरनीथ दे हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट फंडामेंटल ऑफ एआई इज आवर डाटा। जो डाटा हमारा सोशल मीडिया पे या कंपनी एंटरप्राइज के अपने हिस्टोरिकल डाटा हैं, दैट इज वेरी क्रिटिकल। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी मैनेजमेंट। एंड अनदर क्रिटिकल पार्ट इज मॉडल्स, जो एआई मॉडल्स एग्जिस्टिंग मार्केट में हैं, वेदर दे आर ओपन सोर्स मॉडल, वेदर दे आर चाइनीज और अमेरिकन कंपनीज, वो मॉडल्स को समझना कि वो मॉडल किस सिनेरियोस में किस यूज केसेस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कौन सा बेहतर है, उसको ट्रेन कैसे करना है। तो ऑल दी स्किल्स और उसकी वैल्यूएशन स्किल्स, ये सब दिस इज फ्यूचर व्हिच वी हैव टू ऑफर। एंड देन फॉर द ऑडियंस देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज वेरी वेरी कमिंग, व्हिच इज वेरी वायबल फॉर कंट्रीज लाइक अस, जो जहाँ पे करने के लिए you don't have to be a machine learning engineer, you don't have to be a coder, you don't have to be a developer to understand these things and data engineer। डाटा लेबलिंग का काम है मोस्टली। बड़ी कंपनीज जिस तरह ओपन आई होगी, एंथ्रोपिक होगी, प्लांटेर होगी, जितने के मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स डाटा को ट्रेन करते हैं। एंड दे टू प्रिपेयर दैट डाटा, वेदर वो इमेज डाटा है, टेक्स्ट डाटा है, यानी सॉर्ट का डाटा है, दैट वर्क स्टिल रिक्वायर्स लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। और इंडिया आई थिंक इज ऑलरेडी वर्किंग, उन्होंने अपने बीपीओ सेक्टर को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया डाटा एनोटेशन के काम के लिए। तो दैट इज वेरी क्रिटिकल कि हमारे लोग ये समझें कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये एक इंटरमीडिएट एजुकेशन के बंदा जिसको वीडियो ऑपरेट करना आता है, एजुकेशन आता है, ये सब स्किल्स वो कर सकते हैं। लेकिन इस स्किल्स को बनाने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। बीपीओ कैन नॉट जंप ऑन दैट। हमें थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट काम करना है, जिस तरह डाटा एनोटेशन की स्किल है, इंटर एनोटेशन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, डाटा बाइसेस क्या होते हैं, और एरर एनालिसिस किस तरह करना है हमने, और बाइसेस जो है वो किस तरह देखने हैं, hallucination लोगों ने किस तरह मॉडल्स की देखनी है। ये एक बड़े ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो टर्म्स तो बहुत मुश्किल लग रही हैं, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट टर्म्स जो हम एक हाउस होल्ड डिवाइस को या
एक अंडरग्रेड स्टूडेंट को सिखा के उसको अपनी सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बता सकते, बना नहीं सकते, और लेबलिंग के काम में, डाटा एनोटेशन के काम में हम स्टार्ट नहीं कर सकते. तो आई थिंक these are the steps which we should focus on. ऑल राइट. तो आप जानते हैं माद के पीछे 15-20 साल, जितना भी हमने 15-20-25-30-35 साल, बल्कि आई डोंट नो कि जाहिर है हमें 30 years प्लस हो गए हैं एज अ कंट्री इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, और हमने बाहर सर्विसेज दी. तो पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी सेक्टर ने जितनी सर्विसेज दी हैं, तो इसमें काम करने वाले जितने स्टेक होल्डर्स और लोग हैं, एक नॉलेज बिल्ड हो गया उनके पास, एक नॉलेज आया. अब वो उस नॉलेज से प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं. पर अब ये कैसे फैसला करें कि आज के दौर में, इस वक्त में जहां एआई खड़ी है, जहां ये दौर खड़ा हुआ है, वो कौन सी प्रॉब्लम पे फोकस करें, कौन सी प्रोडक्ट बनाएं, कौन सा प्लेटफॉर्म बनाएं. कैसे तो बात का मसला है, ताकि वो गलत प्रोडक्ट ना बना बैठे, गलत प्लेटफॉर्म ना बना बैठे जो आज की जरूरत ही नहीं है. तो इसके ऊपर आपकी क्या रहनुमाई है? ग्रेट क्वेश्चन. देखिए, जितना भी हमारी सर्विस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज बेस बना है, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच यू मेंशनड फॉर. सो हमें पता है कि हम किस किस्म की प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हैं एज अ सर्विस कंपनी. लॉट ऑफ कंपनीज लाइक बिगर कंपनीज जो सालों से काम कर रही हैं, आई थिंक व्हाट शुड बी कंपनी शुड डू इज कि वो फोकस करें कि व्हाट आर द रिपीट प्रॉब्लम्स दैट kept कमिंग टू them. I think that's very focused. And then based on that problem, they can pick up a design, a product they want to build. और सेकंड प्रॉब्लम जो आई थिंक उसके बाद स्टेप होगा, वो ये होगा कि हम थोड़ी गलती ये करते हैं सर्विस कंपनीज कि हम अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से जो एग्जिस्टिंग लोग डिलीवरीज में काम कर रहे हैं, सेक्टर सर्विसेज दे रहे होते कंपनीज को, हम उन्हीं को एडेड ओनरशिप दे के वी गेट देम टू वर्क ऑन दोस प्रोडक्ट्स. तो क्या होता है, प्रोडक्ट की ओनरशिप नहीं होती, कंपनीज का फोकस ही रहता है उन लोगों का, बिकॉज उनके जो गोल्स टाइड नहीं है, उनकी उनकी डिपेंडेंसी जो है वो वही आवरली बिलिंग रेट पे है. तो वो दे आर वेरी कंफर्टेबल गेटिंग पेड आवरली. सो उनका फोकस इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम इज नॉट ओनिंग दैट आउटकम ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो हमें सर्विस कंपनीज हैव डिसाइडेड दे शुड गेट अ डेडिकेटेड टीम्स जो उन प्रोडक्ट्स पे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे, आईपीस पे काम करे. एंड देन एक और थर्ड स्टेप इज, आई थिंक, इंस्टेड ऑफ rushing towards and spending a lot of money or pumping in that product, I think we should just focus on MVP scope and tell them, और उनको हम लेके जाए मार्केट, अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके, डिजाइन पार्टनरशिप करके, लेट देम यूज फर्स्ट, और उनसे उनसे उनकी जो एपेटाइट है और उनकी जो फीडबैक है उसको लेके जज करें. इफ दे आर विलिंग टू, एग्जिस्टिंग हमारे कस्टमर्स वो प्रोडक्ट लेने को तैयार है, they are to pay for it, then why not the other companies would pay for this? And when we start leaving that old clientage and making revenue, we can invest on the expanding the scope of the product and then taking it to to market at a much larger scale. ऑल राइट. अच्छा, आपने ये सुना होगा कि बहुत बार इस पे बात होती है कि हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो हमें रिवर्स ब्रेन ड्रेन करना है. तो क्या जरूरी है एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन के लिए जो है वो लोग यहाँ पाकिस्तान में फिजिकल आए? क्या एक हाइब्रिड मॉडल नहीं चल सकता? आज तो टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कर सकते हैं कि आप ग्लोबल हेडक्वार्टर अपना बाहर बनाएं और यहाँ पर अपने आप R&D सेंटर्स बनाएं, यहाँ लोकल टीम्स बनाएं, यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम्स के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीजों को आगे लेकर जाएं. तो आप क्या समझते हैं कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन के सिनेरियो में पॉलिसी के दायरे में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा ताकि हम ग्लोबल लेवल की प्रोडक्ट्स भी बना सकें, ग्लोबल स्केल पे जो कस्टमर को चाहिए वो भी हम प्रोवाइड कर सकें, लेकिन हम अपनी धरती से, अपने वतन से भी जुड़े हों और यहाँ के लोगों को रोजगार और जॉब्स भी दें, यहाँ पर हम R&D हब्स भी बना सकें? तो इस सारे को करने के लिए हमें एज अ इकोसिस्टम और एज अ कंट्री क्या करना पड़ेगा, और कौन कौन से फैक्टर्स आप समझते हैं कि इसके अंदर जो है वो डिसाइसिव हैं, और हमें उन तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा? जबरदस्त. आई थिंक बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा. आई थिंक पहले तो जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं, आई थिंक हमने चाइना की एग्जांपल देखी, इंडिया की एग्जांपल हम देख लें. इन तमाम मुल्कों में लोग दे वेंट आउटसाइड, जिनको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं. उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशंस खड़ी की, वहां से सीख के कुछ लोग अपने मुल्क में वापस आए, एंड लॉट ऑफ पीपल जिनकी आप बात कर रहे हैं वो रुके वहां पे, उन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाए अपनी, और अपना सारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम था या सर्विसेज का काम था, उन्होंने वो पाकिस्तान लेके आए.
ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है कि जी रिवर्स प्रिंट यही है कि जी आप लोग वापस आ जाएं, जिस तरह आई केम बैक फॉर माय ओन रीजंस, but it doesn't make me more patriotic. It doesn't make me more effective. People who are still in those countries and they're working, they can still contribute at a larger scale. As you mentioned, a lot of companies are have done that. Motives is an example. जो मेरे ذहन में आ रही है. Affinity is another example. They all had their headquarters in US, but they brought all their service-based uh, uh, work to Pakistan. They opened their backend offices and they had huge thousands of they had sources in thousands, in number of thousands. वहाँ पे लोग थे different, whether it's AI के data scientists थे, developers थे, different technology stack के लोग आए, उन्होंने काम किया, सीखा, वो लोग भी सीख के they some went to bigger companies, went to abroad, and some of them actually started their work. Like we saw a lot of companies coming out of founders from companies like NetSol, Affinity, PRG, people who work there, and got the knowledge, got the training from them, and they build their own company. So the impact which we our diaspora in overseas can make by staying there is also significant. And they can make unicorns and they can get millions of dollars into Pakistan if they approach. So I think we should not blame them or make this as a negative PR thing that if they are not coming back, they want to stay there for all the reasons, and there are actually a lot of reasons. If you speak to them and if you see the ecosystem which I have seen outside, one of the important fundamental which I early once kind of skipped answering you previously was market access is very crucial when we talk about building those our revenue in this in IT and AI services or exports. We need market access, and those people, they are there, they have relationships, they have credibility, so they can be a great stepping stone for Pakistani people or even talent or entrepreneur to get connect with them and tell them to help us bring that credibility of yours back to our country. So in form of the access which can we can have with them, वहाँ की enterprise companies के साथ हमारे से हम contract करें and bring that value chain. So when we talk about हाँ. connecting market access, uh, still our government doesn't get our right. Our policies are not consistent. I think we can leverage that our brain which is sitting outside of Pakistan and which can help us connect to the market. So I think this is very crucial to understand. ऑल राइट. तो अम्माद, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं आईटी सेक्टर को अपलिफ्ट करने के लिए, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, जैसे कि इंक्लूडिंग 50% फॉरेन करेंसी रिटेंशन और इसी तरह से 0.25% एक्सपोर्ट टैक्स थ्रू 2029. तो आपको क्या लगता है कि जितने भी टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स आईटी ने एज अ सेक्टर या हमने एज अ कंट्री तय किए हैं, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 से 5 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवानी हो या 3 से 5 स्टेप्स और लेने पड़े, तो वो क्या आप रेकमेंड करेंगे ये सारे टारगेट्स अचीव करने के लिए? आपको क्या लग रहा है? I think we should encourage these are good steps, but I think as we discussed previously, there are lot of things we need to improve to develop a proper ecosystem. So I think the very first thing I want the funding, our national, talking about national AI policy, they have allocated funding for AI. I think we should first thing we should do as a company, as a country, is that हम उन स्टार्टअप्स को, उन एंटरप्राइजेस को टारगेट करें फंडिंग के लिए, उनको सपोर्ट करें, which has clear budgeting path to develop AI related products, or even AI have the capacity to build AI related given AI related services. So I think that's number one we should do. Second, I think we have to create a sustainable policy. That's very critical, because मैंने पहले जिक्र किया कि we should have fast track how the companies are registering, how companies are handling the tax matters, whether it's FPR, whether things related to SCCP. I think that needs to be fast tracked. And thirdly, I think we should, our talent, we are not talking much about building talent. हम AI की बात कर रहे हैं, but I think at the end of the day, like हम ये समझ रहे हैं कि AI would replace the human
ह्यूमन बाय 1/3, एक बंदा 3 से 4 लोगों का काम करेगा, बट उसकी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करनी है. सो वी नीड टू बिल्ड आवर टैलेंट अकॉर्डिंगली. वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल run away from this mindset that AI is going to take away jobs. No, what AI going to take job of people who will not be able to leverage AI properly. So there's a lot of potential there. I give example of like when steam engine was invented. People thought, लोग समझे कि अब कोल की जो है ना वो कीमतें गिर जाएंगी और कोल का बिजनेस से निकल जाते हैं. Coal will not be a very cheap commodity now. But what happened? Steam engine invented. बहुत ज्यादा दुनिया ने स्टीम इंजन बन गए और कोल की प्राइस कम होने के बजाय बढ़ गई. सो आई थिंक एआई वुड प्रॉब्ली गोना डू दैट. और हम जिस क्रॉस रोड्स में हैं, वी शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन our building the right talent, so we should, our government should invest the talent in training the talent. जो मैंने skills बताएं जो data annotations के लिए हैं, data labeling के लिए हैं, या AI native AI build करने के लिए जो skills हैं, वो unfortunately हमें लोग नहीं है हमारे पास. We as a companies, we look for people who have senior AI engineers. We are struggling to find that. A lot of companies are still struggling to find that. So इससे पहले कि वक्त आए कि जब हम लोग बिजनेस इंशाल्लाह ले आए, हमारे पास लोग ट्रेन करने को, तो इकोसिस्टम को तैयार कर लें. सो जो वेदर नैफटेक के थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने की कोशिश कर रही है, डिजिटल स्किल्स के नाम शुरू करी है. एक तो वो स्किल्स लेके आए, मेक श्योर कि ये जो नई स्किल्स जिनकी मैंने जिक्र किया ये ट्रेन करें, और उनको ट्रेन करने के लिए टीचर्स को पहले हम इक्विप करें. लाइक इंडिया ने अपनी पॉलिसी में, अभी जो एजुकेशन पॉलिसी में, they have included AI as a proper board. I think 9th और 10th के क्लास के लिए उन्होंने 2029 के एग्जाम्स के लिए बोर्ड का एक सब्जेक्ट बना दिया, जिसके लिए अभी से उन्होंने टीचर्स ट्रेन कर रहे हैं. So look at their mindset. They gonna spend a year or two training their teachers, and then in next 2 years they will train their people, and then they will start taking exam at a high secondary and high secondary level. So I think we as a government, we should start investing in the same sort of career path. राइट. आप जानते हैं मात कि गवर्नमेंट बहुत बात करती है पाकिस्तान की एआई नेशनल पॉलिसी. अगर वाकई हम एज अ कंट्री सीरियस हैं एआई पॉलिसी के ऊपर, तो इसके रिलेटेड इस एआई पॉलिसी को बनाने के साथ साथ हमें कौन कौन से और काम करने पड़ेंगे ताकि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बने, जैसा कि आपने मेंशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस, आपने ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया. जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, आपको बाहर से डिमांड आ भी जाए तो आप पूरी कैसे करेंगे? सवाल तो यही है ना कि Exactly. आपने इवन अगर एआई को भी यूज करना है लेवरेज के तौर पे, तो जब तक आपके पास ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है तो आप करेंगे कैसे? थोड़ा इस पे और रोशनी डालें कि एक तो ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन कैसे करे गवर्नमेंट. एक तो आपने बोला एकेडेमिया के हवाले से, और क्या क्या करे, प्लस इसके साथ साथ एज अ इकोसिस्टम क्या क्या करना पड़ेगा कि हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना सकें कि जो वाकई ग्लोबल लेवल की प्रोडक्ट्स की डिलीवरी दे सके, और हमारे पास न सिर्फ ट्रेन्ड ह्यूमन कैपिटल मौजूद हो, बल्कि जो भी हर्डल्स और हिंड्रेंसेस आ सकते हैं वो ना हो. Great. I think अगर expand करूं मैंने पिछले आंसर को, तो थोड़ा expand कर लें तो AI सिर्फ प्रोग्रामिंग या डिफरेंट टेक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने नहीं वाली. हेल्थ केयर वुड चेंज ड्रास्टिकली. जिस तरह की इमेज प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है, डू यू फील दैट the radiology department would exist in couple of years? I doubt that. Even if it exists, it's gonna exist at a very small level. There are a lot of other areas, not just healthcare, but in financial sector, in industrial, in other industries, which is going to be impacted. So हमने अपने लोगों को eventually, चाहे वो AI इंजीनियर बनने नहीं आए, वो टेक इंडस्ट्री में जाते नहीं है, where they are ready to other fields, they also need to learn how to leverage AI. So that's a very critical, important point you highlight. So for that, हमने शॉर्ट कोर्सेज का जिक्र किया, जो हम 3 months 4-6 months की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है. हमें अपनी ये ट्रांजिशन को अपने स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. सो उसके लिए हमें पहले तो नॉट जस्ट हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि हम अपने स्टाफ को टीच करें, एंड वी माइट हैव टू गेट सीनियर technical people from outside of the country, hire them, fund them to come. हमारे लम्स एक इदारा हमारे सामने है जो लोगों को बाहर से लेके आता है टीचर्स को एंगेज करने के लिए. तो प्रॉब्ली सम सॉर्ट ऑफ मॉडल वी पिक 3-4
और कपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिनमें हम ये करें एट यूनिवर्सिटी लेवल, जहाँ पे हम गवर्नमेंट फंड करें, वो लोग आएँ, हमारे बच्चों को भी सिखाएं, हमारे स्टूडेंट्स को भी, टैलेंट को भी सिखाएं, हमारे टीचर्स को भी ट्रेन करें, एंड वी नो वी टेक देम। सेकेंडली, मैंने आपको पहले जिक्र किया था, जो जिस इकोसिस्टम में हम यूनिवर्सिटीज को रोल प्ले करने को कह रहे हैं, उसमें हम यूनिवर्सिटीज को तभी रोल प्ले करने देंगे जब उनको हम वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ की रिसर्च एनालिस्ट को, वहाँ के प्रोफेसर्स को हम एक्सेस दें, एआई कंप्यूटिंग का चीप एक्सेस, ताकि वो सब काम कर सकें, मॉडल्स डिप्लॉय कर सकें, ट्रेन कर सकें, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, एंड दे शुड हैव चीप एक्सेस टू क्लाउड एंड अदर थिंग्स। सो कहने का मतलब ये है कि दीज आर ऑल स्मॉल स्टेप्स वी हैव टू, उनको हम देंगे तो वो सिस्टम का हिस्सा बन सकेंगे। एंड थर्डली, जो हमने बात की आपने कि और हम इसके अलावा, आई थिंक एक मिसिंग पीस जो हम मार्केट एक्सेस की बात कर रहे हैं, एक्सेस टू द मार्केट बात कर रहे हैं, हम वी टॉक अबाउट, नॉट टू बी टू पॉलिटिकल हियर, हमने ये क्रॉस रोड्स पे करें जहाँ पे हम ये लोगों की मुल्कों की सुपर पावर्स की सुलह करा रहे हैं। वी एंजॉय गुड रिलेशन विद अमेरिका, वी एंजॉय गुड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया। Saudi Arabia has recently announced their AI, transformation roadmap. तो अगले 3-4 सालों में they want to build a lot of things. In UAE, we talk about UAE is planning to do 50% of their government operations on AI in next 3 years. So ये सब हम यूज करके हमारी गवर्नमेंट, हमारी प्रोटेक्शन, जो हम उनसे ग्रांट्स मांग रहे हैं, हम उनसे और सिक्योरिटी पैक्ट्स कर रहे हैं, we should also sign agreements that we should be the one who will be transforming this, X amount of departments, X amount of companies we're going to serve, या एक हमें वो शेयर दें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में के काम में। तो आई थिंक ये भी करने की बहुत जरूरत है, और इसको जितना आई थिंक हम इसको उठा सकते हैं, अपनी यूथ को मैं कहूँगा टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट दैट दे शुड टेल अस। ये बातें और जो नरेटिव्स हैं वो बिल्ड होते रहेंगे, मसले आते रहेंगे इंटरनल एक्सटर्नल, बट हम ये जो एरा है, जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन का एरा है, इसको अगर हम मिस कर गए तो वी वुड रिग्रेट। सो गवर्नमेंट शुड इंश्योर उनकी डिप्लोमेसी जो भी है, जैसी भी है, उसकी जो असरात हैं वो इन फॉर्म ऑफ एआई और आईटी एक्सपोर्ट हमारे मुल्क को मिले। All right, Ahmad, trust me, it was really, really, really insightful. I really enjoyed and learned a lot. आपने जिस खूबसूरती के साथ हमारी इनफरादी कंपनियों की सतह से लेकर कौमी सतह तक के पूरे इकोसिस्टम को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, उसमें आपने पॉलिसी लेयर को कवर किया, आपने इकोसिस्टम लेयर को कवर किया, आपने टाइमिंग को कवर किया। डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि जो आपने अप्रोच शेयर की इस पॉडकास्ट के अंदर, एक कोहेसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और एक कलेक्टिव अप्रोच ही हमें करनी पड़ेगी। और बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि नैरेटिव और स्टोरी बनती रहेगी, बट हमें बहुत सारी जगहों पर प्रैक्टिकल स्टेप्स करने होंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और हर सेक्टर में करने पड़ेंगे। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कोड निंजा को, क्योंकि मैं क्लोजली टेक इकोसिस्टम को, पाकिस्तान को फॉलो करता हूँ। तो कोड निंजा जो है वो डेफिनेटली एआई इकोसिस्टम्स और एआई सिस्टम्स को इस तरह से बनाना चाहती है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इस तरह से बनाना चाहती है कि फैक्ट्री के फ्लोर्स पे जो है जितने भी फैक्ट्री के फ्लोर्स हैं जहां प्रोडक्शन होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इस चीज से फायदा उठाया जाए, ऑटोमेशन की जाए, ताकि कम से कम इंसानी मेहनत के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ली जा सके, कम से कम कॉस्ट के साथ और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ। तो मैं ही समझता हूँ कि आप लोग एज अ कंपनी पाकिस्तान में, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में और दुनिया भर में जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, जो आपका एक विजन है एआई को लेकर सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक बड़ा पॉइंट है जिसको बाकी कंपनीज को भी फॉलो करना चाहिए। और हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं, नई कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस विजन से, इस कंपनी से काफी कुछ सीखना चाहिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट द को फाउंडर ऑफ कोड निंजा, उमर। आई एम पैशनेट, जिस तरह से वो लिखते हैं, वो फिलोसफी को और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करते हैं और अपने आइडियाज शेयर कर रहे हो। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने आज के पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। आखिर में मैं चाहूंगा कि आपको एक पैगाम दें स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, एकेडेमिया के लिए, टेक इकोसिस्टम के लिए और गवर्नमेंट के लिए, कोई भी नेचुरल मैसेज जो हमें एज अ नेशन ट्रांसफॉर्म कर सके। आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है। आपने कोड निंजा की एग्जांपल दी जो बड़ा फोकस कर रही है, दे आर, उमर इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर वेरी, एंड लिंकिंग दैट टू टेक्नोलॉजी वेरी वेल। बहुत से लोग उसको शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जो 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 टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग नहीं करते। मैं उसी पे बिल्ड करूंगा। सो पाकिस्तान, दुनिया इस वक्त एक क्रॉस रोड्स पे है।
AI का एक phenomena gonna be potential of much bigger than internet age. जब internet आया था, दुनिया को transform किया था. So it's a crossroads for not just of our economies, दुनिया की बाकी economies के लिए भी है. हम इंडिया की बहुत मिसाल देते हैं, ना सिर्फ इंडिया, वियतनाम, इजिप्ट, फिलीपींस, मलेशिया, अदर यूरोप में चले जाएं, वो सब इस बैटल की तैयारी कर रहे हैं टू गेट लीवरेज, टू एआई लीवरेज करके दे वांट टू सिक्योर देयर बिजनेसेस इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैच करने के लिए. सो माय मैसेज टू टैलेंट, माय जो स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, फॉरेन डायस्पोरा है हमारा, उस सब के लिए मैसेज ये है कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को किसी सूरत मिस नहीं करना. अगर हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गए तो देन इट विल नॉट गोना कम. I told you India started this 5 decades ago. We started it 2 decades ago. So हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है नेचर की तरफ से कि एआई ने घंटे भेजने के बजाय आउटकम भेजने का कॉन्सेप्ट दुनिया को दे दिया है. अब हम इस चीज को बहाना नहीं बना सकते कि हम स्ट्रेंथ में कम हैं और इंडिया हैड 7-8 टाइम्स मोर देन पॉपुलेशन दैट्स ऑलरेडी मार्केट में बैठा हुआ है. ये बहाना नहीं सकते हम अपने आप को देख के अपने आप को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं. ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना स्टूडेंट्स अपने आप को डिप्राइव फील कर सकते हैं. हमने इस स्किल्स को कैचअप करना है, हमने इस स्किल्स को सीखना है, अपना टैलेंट तैयार करना है, मार्केट एक्सेस लेना है और अपने खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है जहां पे हम एक R&D दुनिया की AI R&D की हब बन सकें. और इट इज, ये सिर्फ बातें नहीं है, this is possible, this is very possible. You talked about Umar, you talked about our founders, you talk about other people. There are people who are very smart and they can make it happen for us. We just have to enable them. And the things we discussed today, जो हमने अपने एजुकेशन के रिफॉर्म्स की बात करें, मार्केट एक्सेस की बात करें, चीप एआई कंपटीशन देने की बात कर रहा हूँ मैं, और एआई फंडिंग की बात कर रहा हूँ, ये सब पॉसिबल है. और आई थिंक अगर हम 2 से 3 साल कुछ भी ना करें और हम फोकस करें अपने इस एजेंडा पे, तो our youth, our young generation can turn around the economy. And I totally feel that. In this time of pessimism, jahan pe we have internal issues going on, in political instability is there, lot of things here. I am still hopeful that our talent can turn this around, and I can see that happening. All right. Absolutely, Ahmad. And thank you very much for joining and for your precious time. और मुझे पूरी उम्मीद है, और सिर्फ उम्मीद नहीं, यकीन है, और इसकी एक वजह है. जिस तरीके से कोड निंजा मैंने देखा कि ये लोग लाहौर को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के अंदर, लाहौर के थ्रू पाकिस्तान को जिस तरह से ग्लोबल स्टेज पे पेश किया जा रहा है, पाकिस्तान की स्टोरी को, लाहौर की स्टोरी को, और जिस तरह से कंटिन्यूसली आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम के लिए, ग्लोब के लिए, तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आगे जाके. वी डोंट नो कि कितने लोग इससे इंस्पिरेशन लेते हैं. एंड आई थिंक यू गाइज आर डूइंग द रेवोल्यूशनरी जॉब. रियली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो कुछ आप कर रहे हैं. विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय शो टुडे. Really enjoyed the show. Thank you guys for having me here. Thank you so much. Take care.